So, welcome guys to yet another midnight podcast of Together Divines. After I suppose a halt of around a month, last month I had done a podcast session with you guys. So, how are things going up with you guys? Om Namah Shivaya, हाँ जी, Om Namah Shivaya. ओवर द टाइम्स मैंने नोटिस किया कि थोड़ा ट्विन फ्लेम्स का डिस्कशन कम हो गया है और बाकी जो डिस्कशंस हैं लाइफ को लेके या बाकी फ़िलोसॉफी स्पिरिचुअलिज्म को लेके वो सब डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और क्या है ना कहीं आप लोगों का इंटरेस्ट ट्विन फ्लेम वाले टॉपिक में ही रहता है, भले आपको समझ में आए ना आए, भले उसकी गहराई तक आप लोग पहुंच पाओ ना पाओ, राइट। बट आफ्टर ऑल यू ऑल क्रेव फॉर दैट ट्विन फ्लेम रिलेटेड टॉपिक्स ओनली. So whenever I'll talk on twin flame related topics, I'll put it on English so that audience all across the world, whosoever listens to the video, will understand it. पर बाकी जो बातें होगा other than that we can do in English, Hindi or any other language as comfortable to you guys, right? So. First of all, see, I have been, notifying you guys regarding the Shivratri Sadhana. It's on 8th of March, Mahashivratri this year. And it's Women's Day also. And Mahashivratri, खैर शिवरात्रि साधना भी काफ़ी दिन से halt pause पे है. So Mahashivratri is something, that although the Shivratri comes every month on the Trayodasi night, but Mahashivratri has a major influence because it is the main and that night the energies of the divine are very much aligned, so you guys are also on that. Anybody who will be meditating on that day with proper guidance is bound to get benefited out of it. अब पिछली बार जिन लोगों ने शिवरात्रि साधना किया था, right, you guys can if you guys are here joined, then you guys can tell कि आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुआ. ऐसा नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए, इसलिए भी कि आप लोगों ने क्या खुद में वो देखा अपने अंदर कि उस दिन का साधना के बाद, या आप लोगों ने बाकी फिर उसको अपने लाइफ में नित्य साधना में कितना प्रैक्टिस किया, आई डोंट नो, उससे आप लोगों को क्या क्या एस्पेक्ट्स में फ़ायदा हुए. कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और हो गया, एंड कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये कोई डिवाइन ब्लेसिंग की रास्ते से ही हुआ है, नहीं तो इतना जो है ना आसानी से होना संभव नहीं था. कोई एक्सपीरियंस डेफिनेटली हुआ होगा बिकॉज लास्ट ईयर्स महाशिवरात्रि night was a very blissful and a very good one. We started from somewhere around evening 9:30 or 10 p.m. and we concluded at 5 a.m. in the morning. So around, I remember, 7 hours we were awake for the Shivratri sadhana, and energies was aligned so much that everybody who were participant of the Shivratri sadhana could feel the power of Shivratri sadhana. Pampa, I always receive your join to request, but even if I accept you will not gonna come and speak anything. So I don't understand why you send this joint request every time. I don't get it at all, because many a time I have accepted your request, but you don't join at all. So it's no use of sending the joining request. I don't know, it's your habit or impulsiveness, I don't understand, but you do it regularly. तो शिवरात्रि का जो है ना साधना इस बार फिर से मेरे को है कि करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. नहीं तो मैं काफ़ी टाइम से ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल्स, ड्यू टू ट्रैवलिंग, आई was not doing it. So any of you guys, I posted it already on Trinetras time and again, and on Together Divines community posts and other platforms also. rather than मेरे कहने से भी ज़्यादा ना आप लोगों के अंदर वो इंथुजियाज़म होना चाहिए था, वो डिज़ायर होना चाहिए था कि सर करवाओ, क्योंकि पिछले साल इसी तरीके से हुआ था
लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप शिवरात्रि साधना कराओ कराओ, आप अकेले में क्यों करोगे, साथ में करते हैं बोल के। तो उस तरीके से हुआ। एंड फिर शिव साधना का लेवल्स भी रोल आउट हुआ, लेवल 1 हुआ है, लेवल 2 हुआ है। आई कैन गो अप टू लेवल 6, यू नो द अल्टीमेटम फाइनल, बट फॉर दैट यू गाइज नीड टू बी रेडी एंड यू नो बूस्ट मी अप। लेवल 2 करते ही जो है ना आप लोगों को वो एनर्जीज इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कई लोगों से कि वो लेवल 3 में क्या जाएंगे, यू नो। तो लेवल 2 में ही आप लोग इतना ज़्यादा घबरा गए कि अरे बाप रे सर, काफ़ी एनर्जी हाई था, सर चकराने लगा, सर घूमने लगा, ये है वो है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक जो है ना एक टेस्ट जैसा एक है कि आप कितना एनर्जीज को झेल सकते हो, ठीक है। अगर कोई, मैं ये एग्जांपल्स आप लोगों को बार बार देते रहता हूँ कि अगर अ, आपका कैपेसिटी है मान लो महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए हैंडल करने का, कोई आके आपको 100 करोड़ रुपए दे देगा तो आप पागल हो जाओगे, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे इतना पैसा मैं कैसे मैनेज करूं, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम थिंग। नॉर्मली पीपल आर नॉट दैट मच केपेबल टू हैंडल सच यू नो हैवी एनर्जी, और अचानक से कहीं से एनर्जी का फ्लो होता है तो लोग घबराने लगते हैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ठीक है। आप लोग आइसोलेशन में जो भी मेडिटेशन करते हो यूट्यूब वीडियोस देख के इधर उधर, वो सबसे कुछ नहीं होता, ठीक है। मेडिटेशन करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो, किसी कोच के साथ करो, या कोई गुरु आपको मिलता है उनके साथ करो, ठीक है। गुरु दीक्षा लेके करो और ज़्यादा बेहतर है, तभी उसका कोई फ़ायदा है। नहीं तो आप अगर लगाओ, अगर यूट्यूब से ही सब कुछ होना होता, ठीक है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जेन्युइनली आके सामने बता सकते हैं कि आप लोगों ने यूट्यूब के वीडियोस में मेडिटेशन किया है और उसके बावजूद आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है, या फिर यूट्यूब के वीडियोस से आप लोगों ने बहुत सारा मेडिटेशन किया तो सही, पर जब हमारे साथ किए आपने मेडिटेशन टुगेदर डिवाइन्स के साथ जुड़ के कोई भी मेडिटेशन, तो आपको लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग ही है, ऐसा चीज़ तो ना यूट्यूब में कोई बताता है, ना ऐसा एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। कैन एनी वन टेल? आई डोंट नो, लिमिटेड पीपल हैव ज्वाइंड राइट नाउ। ठीक है, तो वो होता है आप लोगों के साथ, सबके साथ होता है, ठीक है, डेफिनेटली। तो वो आप लोगों का अपना जो है ना प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप लोग अगर सीखना चाहते हो, कोई सिखा रहा है तो सीख लो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, नहीं है कि मैं 24 घंटा 12 महीने उस जो है ना फ्रीक्वेंसी में रहता हूँ कि सिखाना है, ना मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को सिखा के ही जाना है, ठीक है ना, कि वो तो हेडेक मैं नहीं लेता हूँ। आई एम अ फ्री सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। जिस दिन डाउनलोड्स होते हैं उस दिन मैं पोस्ट भी डालता हूँ, या उस दिन मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, या जिस दिन नहीं होता है तो महीनों महीनों साल साल तक चला जाता, मैं एक भी वीडियो तक नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग जानते हो इस तरीके से। तो जब फ्लो होता है, जब मैं इनवाइट करता हूँ आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, देन डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, अगर आपको करना है तो, ठीक है। नहीं तो आलतू फालतू चीज़ों में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उससे अच्छा लर्निंग में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। दिस इज़ माई बिगेस्ट थिंग, आई ऑलवेज टेल you guys again and again, but I think I am putting it right away this time in a very crystal clear and crisp words, that do invest in learning in your life, ठीक है। do invest in acquiring skill set in your life. School college does not provide you learning, okay, sorry to be very brutal, but none of your school college wherever you have been pass out, I am अहमदाबाद से पास आउट हो या IIT से पास आउट हो या कुछ भी हो, दोज ऑल नॉलेज आर बुलशिट, दैट इज़ नॉट लर्निंग विच आई मीन टू, या आई एम एम्स से पास आउट हो, दोज ऑल नॉलेज आर बुलशिट, ठीक है। एक्चुअल लर्निंग विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, actual learning will come from sitting with anyone who has that experience or who has that depth on that knowledge, exposure on that knowledge already, and acquire lots and lots of skill set, be it professional skill set you want to acquire or new skill set, you know. I always hunch on learning new things, कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहता हूँ, करते रहता हूँ। अब ये जो इवन न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म साइंस में है, 25-25 साल के एस्ट्रोलॉजर्स
चैनल खोल के बैठे हैं एंड दे आर blabbering on many remedies and everything. Daily you can see many people are posting a single remedy every day. It's not possible that they have tried and experimented those remedies. It's all that they have also learned from somewhere from the book and then they are just sharing out. तो ऐसा नहीं करना है. मेरा लाइफ का सिंपल फंडा है कि सीखते रहो, मरते दम तक सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो. लोगों से सीखो, ऑनलाइन सीखो, कोई ऐसा जो है ना कहीं पे कोई मिलता है कोई ऐसा सेशन, वहाँ जाके सीखो. ठीक है ना. तो क्या होता है ना कि लाइफ में आप एक सर्टेन स्किल सेट एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. एजुकेशन का क्या होता है ना कि ऑल्टरनेटिव निकल आ सकता है. ठीक है. जैसे मान लो IIM अहमदाबाद से अगर एक साल में 250 MBA स्टूडेंट्स निकलते हैं तो 250 के पास IIM अहमदाबाद का डिग्री है. ठीक है. उसमें कोई अंतर नहीं है. Everybody is competent enough as per the degree and the grades whatsoever they get from the college. But the matter is that वो 250 लोगों में हार्डली 15-20 लोग होंगे, या IIM अहमदाबाद का बात है तो चलो 30-40 लोग लगा लेते हैं. ठीक है. 10-20% people who will be actual having that skill set due to which they can encash on the knowledge that they have acquired from the their college, their alumni whatsoever, alma mater we say, right. तो वो फिर डिफरेंस करता है. इसीलिए IIM अहमदाबाद का भी हर लड़का का पैकेज 1 करोड़ का नहीं जाता है. ठीक है. ऑल दो सेम कॉलेज से निकले हैं, सेम कॉलेज से पास आउट है, सबका पैकेज सेम नहीं जाता है. एक आधा होता है जो क्रैक करता है बड़ा पैकेज. वाई? बिकॉज दैट पर्सन शोड समथिंग अबव व्हाट द कॉलेज वाज गिविंग, ग्रांटिंग. ठीक है. तो आप लोग ज़्यादातर लोग क्या है ना कि वो भेड़ बकरी जैसा सिर्फ वो बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान, यही सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, उसके बियॉन्ड जाके नहीं सोचते. ठीक है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से ही सीखो, कहीं से भी आपको वैल्यू मिलता है जो आपके लर्निंग को इन्हांस करे, जो आपके स्किल सेट को इन्हांस करे, वो करो. उससे आपका ना ही लाइफ अच्छा होगा, बल्कि अगर आप मनी माइंडेड पर्सन हो कि नहीं मुझे लाइफ में पैसा कमाना है. ठीक है. तो तब भी स्किल सेट की वजह से पैसा आता है, एजुकेशन की वजह से पैसा नहीं बनता है. ठीक है. एजुकेशन से आप पेट पाल सकते हो, हाँ दाल रोटी चल जाएगा. ठीक है ना. पर उससे बियॉन्ड नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. उतना ही हो पाएगा. सो अब इस पे कितना आपने समझा है आई डोंट नो, मैंने जो बोला अभी, पर दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लाइफ. जिसके पास स्किल है वो पैसा कमाता भी है, बनाता भी है, और पैसा का एक्सपेंशन भी कर सकता है. जिसके पास स्किल सेट नहीं है, जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, किसका दूँ, जैसे धोनी लगा लो या सचिन लगा लो. ठीक है ना. मीडियोकर फैमिली से आते हैं, नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड, कोई ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं किया. विराट कोहली लगा लो, सारे क्रिकेटर्स का ही मैंने बता दिया आप लोग को समझने के लिए आसान हो. दे ऑल कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली से. ठीक है ना. बहुत मिनिमम उनके बैच के स्टूडेंट्स लोग पढ़ने में फोकस किए, वही बुकिश नॉलेज. आज उनके पास भी पैसा होगा. ठीक है. ऐसा नहीं कि उसके बैचमेट्स कोई गरीब होंगे. थैंकफुली दे वुड ऑल्सो बी लिविंग अ डिसेंट लाइफ, गुड लाइफ. एक फ्लैट होगा, गाड़ी होगा, घर होगा, ये होगा. पर एक्चुअल में जो एबंडेंस है, एक्चुअल में जो वेल्थ है, वो किनके पास है? ये लोगों के पास है. वाई? बिकॉज दे वर नॉट फोकसिंग ऑन एजुकेशन, दे वर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग अ स्किल सेट. ठीक है. तो एजुकेशन देखो रिप्लेस हो सकता है, स्किल सेट रिप्लेस नहीं हो सकता. अब सचिन ने जो स्किल डेवलप कर दिया अपना बैटिंग का, वो रिप्लेसेबल नहीं है. धोनी ने जो स्किल सेट रिप्लेस कर बना लिया अपना कैप्टनसी का, कैप्टन कूल का, दैट इज़ नॉट रिप्लेसेबल. वो उसका स्टाइल है, उसी के साथ चला जाएगा. ठीक है. सिमिलरली spiritualism, now I am connecting that topic with spiritualism. तो spiritualism also something similar to that. भक्ति भी, भक्ति मार्ग भी है, जो साधना मार्ग भी है ना, वो ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता है, स्किल सेट से. तो ये भी एक स्किल है. आप अगर इसको सीखोगे, आगे जाके आप 4 लोगों को भी सिखा सकते हो और खुद अपना भी लाइफ को अच्छा कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूटिलाइज द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड. ठीक है. और स्किल सेट मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी स्किल ना आपको फ्री में नहीं मिलेगा. ये एक गुरु दीक्षा के फॉर्म में ही पास ऑन होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. क्योंकि या तो ये अब आप
ठीक है ना। जैसे मान लो सचिन का एग्जांपल लेते हैं, सचिन भी बैट्समैन बना, आज के डेट में आप लोग गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसा ऐसा नाम से बुलाते हो उसको, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम था सचिन वाज आल्सो एक्वायरिंग दो स्किल्स फ्रॉम हिज कोच, ठीक है ना, बैटिंग कैसे करना है करना है। हाँ, ओवर द टाइम उसने उसको आउट परफॉर्म कर दिया, ज़्यादा कर दिया, फिर लक ने भी साथ दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। पर उसने वो चीज़ तो कहीं किसी से सीखा ना। अब कोई किताब में आप मान लो हाउ टू प्ले क्रिकेट का अगर बुक ला के पढ़ोगे, ठीक है, आप 400-500 पन्नों का अलग अलग बेस्ट सेलर्स हाउ टू विन अ क्रिकेट मैच पढ़ोगे, यूट्यूब में वीडियोस देखोगे हज़ारों, क्या उससे आप अच्छा क्रिकेटर बनोगे? या डेली बेसिस में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना स्किल सेट डेवलप कर रहे हो, उससे आप अच्छा क्रिकेटर बनोगे, और उससे आपका लाइफ में अबंडेंस आता है, पैसा आता है, फाइनेंस आता है, एवरीथिंग वहीं से आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप मेरे ख्याल से समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और गधा को जितना ज़्यादा भी बताओ ना वो कुछ समझता नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो समझाना था मेरे ख्याल से आप लोग को समझा दिया। इसके बाद मुझे वो क्या बोलता है ना, ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मन है, करना है, सीखना है, ठीक है, और वो हीलिंग अपना करना है, ठीक है ना, ताकि आपके साथ साथ आपके एंसेस्ट्रल फैमिली सबका जो है ना कनेक्टेड रहता है। तो महाशिवरात्रि का साधना मैं अवॉइड नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो जैसे 3-4 महीनों से शिवरात्रि साधना को अवॉइड कर रहा हूँ, इसको भी मैं स्किप कर सकता हूँ। इसको कहीं ना कहीं मन है कि कर लूँ, ठीक है ना। तो 8 मार्च देखो डेट तो काफ़ी अच्छा है। डे में देख लेता हूँ कौन सा डे है ये महाशिवरात्रि। फ्राइडे, डे भी अच्छा है, नाइट भी अच्छा है, फ्राइडे का नाइट अंटिल सैटरडे मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा दिन में पड़ रहा है शिवरात्रि इस बार का 8 मार्च, वैसे भी वुमेंस डे होता है। ठीक है, सो एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड, द वाइब्स एनर्जी ऑफ दैट अपकमिंग इवेंट इज़ वेरी गुड। अब आप लोग कितना उसको कर सकते हो वो आप लोग अपना देखो। दोज हु आर सीरियस अबाउट इट कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम DM, देन आई लेट यू नो। ठीक है, तो पोस्ट्स वगैरह तो मैं कर रहा हूँ, त्रिनेत्रज में कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, पर आप लोगों को ये ना एक आदत हो चुका है कि किसी को आके शेक करना पड़ता है, जगाना पड़ता है, तभी आप लोग फिर सोचते हो, नहीं तो आप लोग चादर ओढ़ के कंबल के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे, इन द कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं ना, उसी जोन में आप लोग ज़्यादातर अवेलेबल रहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं चलता है, राइट। चलिए, सो मीनवाइल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट। आई ट्रैवल टू दक्षिणेश्वर, कोलकाता, आई वेंट टू पूरी, जगन्नाथ, है ना, वहाँ पे पूजा वूजा भी करवाया मैंने। तो जैसे यूजुअली मैं जब भी जाता हूँ तो वो नहीं, इस बार थोड़ा विशेष पूजा भी करवाया मैंने, ठीक है, पूरी में। एंड दिस टाइम आई स्टेड एट पूरी, और यूजुअली आई यूज्ड टू स्टे एट भुवनेश्वर, बट दिस टाइम आई स्टेड एट पूरी। एंड काफ़ी अच्छा मेमोरीज़ है अब जो मैंने रख लिया, पूरी के बीच में जाना, वहाँ महाप्रसाद खाना, ठीक है ना। ये सब आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये सब एनर्जी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको जाते रहना चाहिए। फ्रॉम देयर आई वेंट टू मैयर। मैयर का वीडियो को भी यूट्यूब में नहीं डाला हूँ, मैं डाल देता हूँ, तो शॉर्ट सा है। मैयर का टेम्पल से भी आप लोगों को लाइव करवाया था। देन आई वेंट टू चित्रकूट। तो चित्रकूट का कोई भी आपको अभी तक विजुअल्स मैंने शेयर नहीं किया है। हाँ, त्रिनेत्रज में जो अभी आपने हनुमान चालीसा बूस्ट वाला रील देखा है, ठीक है ना, तो वो उसमें जो फोटोज़ हैं वो हनुमान धारा का है, चित्रकूट का है, जहाँ पे राम जी अपने फैमिली के साथ वनवास में समय बिताए थे, राइट। और वहीं पे एक पॉइंट है पहाड़ी पे, हनुमान धारा। तो हनुमान धारा का ऐसा है ना कि कहा जाता है कि वहाँ पे कभी उनको प्यास लगा हनुमान जी को, और उन्होंने बोला कि राम जी को कि प्यास लगा है थोड़ा, है ना, पानी का। अब पहाड़ की चोटी में, पत्थर का पहाड़ है वो पूरा, ठीक है ना, और स्टीप है काफ़ी। तो राम जी ने कोई जो है ना एरो, बाण चलाया, और वहाँ से पानी आने लगा। तो आज के डेट तक वहाँ का पंडितों का कहना था, और मैं तो सर्दी में ही गया था, ठीक है ना, फरवरी जनवरी में ही गया था, तो फरवरी फर्स्ट वीक में गया था। तो क्या है कि वो कह रहे थे कि 2400 घंटा 12 महीना वहाँ पानी आते रहता है, और पानी इतना अच्छा, इतना मीठा, ठीक है ना। तो
जब से मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो एक जो हनुमान जी से मेरा स्पिरिचुअलिज्म का शुरुआत हुआ था। एंड काफ़ी आसान है कनेक्ट करना हनुमान जी के साथ, किसी को भी, बच्चे बूढ़े कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है, बाकी गॉड के साथ इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो है ना दोबारा उस एनर्जी को कैप्चर किया हनुमान जी का, एंड तब से फिर मैं थोड़ा हनुमान जी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा जो है ना हाई वाइब्रेशनल प्लेस है। आपका पहाड़ी के चोटी में मैं तो ट्रैक करके ही गया, हालांकि केबल कार्स का भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे, बट इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल पॉइंट। ठीक है, आप लोग जाते हो या नहीं, कितना करते हो आई डोंट नो। ठीक है, अभी मैंने स्टोरीज में शेयर भी किया था आप लोगों को थोड़ा सा कि कौन सा पॉइंट्स ट्रैवल किया है आप लोगों ने। उसका भी मकसद यही था कि थोड़ा किया करो ट्रैवलिंग है ना कभी, और जब भी जाओ तो थोड़े अच्छे ऐसे जगह जाया करो जहाँ पे कि आपको अगर स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट है या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे थोड़ा बूस्ट मिले, एनर्जी मिले। ठीक है आपको। तो हनुमान धारा में गया, वहाँ पे एक एनेक्डोट ऐसा हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट क्या हुआ ना, जब मैं ऊपर पहाड़ी में चढ़ रहा था, मैं अपने दोस्त के फैमिली के साथ गया था, उसकी वाइफ बच्चा सब कोई थे साथ में। तो दे सेड कि हम लोग केबल कार से जाएंगे, बहुत थक गए हैं, बहुत सारा प्लेसेस कवर अप कर रहे थे हम लोग। तो वो लोग बोले थक गए हम लोग केबल कार से जाएंगे। मैं बोला तीर्थ जैसा जगह में केबल कार से जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं वैष्णो देवी भी पैदल गया हूँ, केदारनाथ भी पैदल गया हूँ, बद्रीनाथ भी पैदल गया हूँ, तो ये भी मैं पैदल ही जाऊँगा। वो लोग बोले कि नहीं यार थक जाएगा। मैं हटो यार साला, फालतू का बात मत करो, मैं पैदल जाऊँगा। मैं पैदल गया, एंड जितना टाइम उनको केबल कार से आने में लगा उससे पहले मैंने कवर कर लिया पैदल। ठीक है ना, सोचो। तो चढ़ाई किया, तो चढ़ाई करके जाते वक्त ऊपर सीता रसोई ये सब भी है, जहाँ पे कि कभी सीता जी ने खाना वाना बनाया होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऊपर जा रहा था ना, तो एक जगह में ऐसा कोई बंदा बैर, कोई सूखे ऐसे बैर जो है ना ऐसे बेच रहा था। तो मुझे बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, वही बैर खाने का मन किया कि यार लौटते वक्त थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा बोल के। ठीक है ना। तो जब मैं सारा दर्शन वर्शन करके नीचे उतर रहा था, तो उस बैर वाले के यहाँ हॉल्ट किया, मैंने बोला खा ले। तो वो ज़्यादा ऑफर कर रहा था, अब और ज़्यादा खा। मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा ही दो, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खाना है, दिन भर कुछ 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 खा रहे हैं घूम घूम के। तो जब उसने दिया तो एक्सचेंज में ना उसने एक कॉइन दिया मुझे, छुट्टे के रूप में कॉइन दिया। कॉइन जैसे हाथ में आया, मैंने देखा जो है ना पलटा के उसको, वहाँ पे वैष्णो देवी वाला कॉइन मिला था मेरे को। और ये मेरे साथ होता है कई बार, मैं पहले भी आप लोगों के साथ ऐसा शेयर किया हूँ कि ठीक है ना, पहली बार तो मैं लाइफ में चित्रकूट गया। ठीक है ना, और काफ़ी दिन ट्रैवल करके इतना दूर से, एंड इतने सारे लोगों में, उतने सारे जगहों में मेरे को वहीं हॉल्ट करने का मन किया। और जब मैंने कुछ चीज़ ख़रीदा तो एज ए एक्सचेंज मेरे को कॉइन मिल गया। ठीक है, माता का वैष्णो देवी वाला लिखा हुआ। तो ऐसे कॉइन्स मेरे पास और भी हैं। ठीक है ना, तो पहले भी ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। तो मैंने कॉइन को बिल्कुल संभाल के साफ वाफ करके जो है ना रख लिया, माँ का ब्लेसिंग समझ के, क्योंकि एक तरीके से शक्ति पीठ भी है वो जगह। नीचे हनुमान धारा है और ऊपर सीता रसोई है, तो एक तरीके से शक्ति पीठ भी हो गया। राइट, तो ये काफ़ी एक इंसिडेंट है। तो मेरा फ्रेंड के वाइफ को मैंने जब सुनाया, हम लोग जब गाड़ी में थे साथ में, तो देवर ऑल्सो शॉक्ड, है ना, कि वो लोग भी तो उसी ट्रैक में थे साथ में मेरे साथ, पर वो लोग के साथ तो ऐसा कोई मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, मेरे साथ हुआ। तो देखो अब ये स्पिरिचुअलिज्म क्या है ना कि आपको आँख में पट्टी बांध के नहीं समझना चाहिए हर चीज़। ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पर हाँ, जब ऐसे मैजिकल चीज़ें हो जाते हैं ना, तो इसका कोई ना लॉजिक रहता है, ना रीजनिंग रहता है, ना कुछ रहता है। ठीक है ना, और आप कुछ बोल ही नहीं सकते, इसमें क्या कर सकते हो। ठीक है ना, आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हो या थैंक यू बोल सकते हो यूनिवर्स को कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड जब से वो कॉइन मेरे पास आया है ना, मेरे को अलग ही हाई वाइब्रेशनल फील होता है, लाइक डिवाइन से कनेक्टेड। ख़ास तौर पे कॉइन से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जो हनुमान धारा, जो जगह में मैं जो है ना गया बैठा, हनुमान जी का जो आप रील देखोगे ना, तो उसमें वो है पंचमुखी हनुमान जी। फिर जो पानी है वो
इट्स नॉट अ नॉर्मल वाटर जो मैंने रील में रखा, ठीक है ना। वो जल आपका तभी से, एज पर माइथोलॉजी, वो तभी से बह रहा है जब से हनुमान जी को प्यास लगा था, और वो पानी जो है ना का जो है ना क्रिएट किया गया वो पानी उनके लिए, तो तभी से वहाँ पे वो पानी है। तो वो पानी पीना, वहाँ पे रहना, तो उसकी वजह से जो है ना एक शरीर में कुछ ऐसा जो है ना एक एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया है कि मैं एक अलग ही लेवल में चला गया हूँ। एंड मज़े की बात आप सुनोगे, एक और मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ कि जब मेरे को जाना था तो मेरा फ्रेंड बोला कि हम लोग मैहर में थे। अब मैहर से हम लोग को जाना था चित्रकूट, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना। और रास्ता ऐसा नहीं कि एनएच का कि आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे, टाइम लगने वाला रास्ता था। तो उसने बोला सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो 6 बजे से ड्राइव करेंगे। मैंने बोला यार 5 बजे उठना होगा, और उसके बावजूद मैं रात को लैपटॉप में ना मूवी डाउनलोड कर रहा था बैठ के, ठीक है। मैंने हनुमान मूवी डाउनलोड किया ठीक है, जो अभी रिसेंट आया, साउथ इंडियन मूवी है हनुमान। तो मैं रात को बैठ के हनुमान मूवी देख रहा था, एंड काफ़ी अच्छा, मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस माइथोलॉजी मूवीज एंड ऑल, वो काफ़ी अच्छा है हनुमान। आई विल रिकमेंड यू गाइज टू वॉच इट, ठीक है ना। या तो डाउनलोड करके कहीं पे देखो, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो मैंने वो देखा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, 3 घंटे का मूवी है, तो वो मूवी ख़त्म होते होते सुबह का 3 साढ़े 3 बज गया था, क्योंकि मेरे को कुछ अपडेट्स करना था, सॉफ्टवेयर अपडेट करना था या कुछ, तो पैरेलली मैं मल्टीटास्किंग करते करते मूवी भी देख रहा था। तो क्या है कि ट्रिप स्टार्ट करने से पहले 4-5 मूवी मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है, पर मैंने देखा सिर्फ हनुमान। एंड हनुमान देख के आपके अंदर वैसे भी थोड़ा सा इंस्टिल हो जाता है हनुमान भक्ति या स्पिरिचुअलिज्म या कुछ भी ऐसा चीज़ जो है ना आपके अंदर आ जाता है पहले से। उसके बाद ट्रिप में जाना, एंड जो है ना वो फिर वो कॉइन मिलना, माता का वैष्णो देवी वाला कॉइन मिलना, तो ये सारा चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक क्या मैं बोलूँ, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना दिया वो ट्रिप मेरे लिए, ठीक है। एंड मैं भी आप लोगों को बोलता हूँ, अगर हनुमान जी से कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो अ, अगर आप लोग हनुमान जी के फ़ैन फॉलोइंग में से हो, या अगर आपने उनके एनर्जी को एक्सपीरियंस किया कभी, तो एक बार आई विल रिकमेंड इट स्ट्रांगली, ठीक है ना। हनुमान धारा जरूर जाना आप लोग, चित्रकूट में, ठीक है ना, एमपी में, सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ज़रूर जाना, मज़ा आ जाएगा लिटरली, ठीक है। एंड मेरा क्या है ना कि मैं त्रिनेत्रज में भी आप देखो ना तो बहुत सारे जो है ना रील्स हैं, पर आप देखोगे सारे रील्स मेरे होते हैं, यस कोई भी कंटेंट होता है 3-4 गॉड गॉडेसेस में ही लिमिटेड है। लाइक शिव है, शक्ति है, हनुमान जी है, राम जी है ना, गणेश जी हैं, और माँ काली जैसे हो गया, शक्ति हो गए वो, ठीक है ना, जगदम्बा, दुर्गा, ये सब, ठीक है ना, थोड़ा बहुत शिवाजी महाराज, छत्रपति, क्योंकि मैं उन्हीं गॉड गॉडेसेस को वहाँ पे जो है ना पोर्ट्रे करता हूँ जिनको मैंने फील किया है, ठीक है, जिनका एनर्जी को मैंने फील किया। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जो है ना किसी को भी डालो। हाँ, कृष्ण का भी मैं करता हूँ, कृष्ण का भी कौन सा फॉर्म, एज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, नॉट द रेगुलर कृष्ण जो कि 16,108 गोपियों के साथ एज अ प्ले बॉय घूमते रहता है। मैंने उसको कभी प्रमोट नहीं किया है, ना मैं उस एनर्जी को कभी एक्सपीरियंस करता हूँ कि कैसा रहा होगा वो बंदा, ठीक है। बट जगन्नाथ के फॉर्म में कृष्ण का जो है, ठीक है ना, उसको तो मैंने महसूस किया है। तो जी, और मैं पोस्ट भी तभी डालता हूँ ना जब मैं वो गॉड गॉडेसेस को एक्सपीरियंस करता हूँ, तभी मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली डालता गया, ठीक है ना। मन करता है, कनेक्ट होता हूँ नॉर्मली। अभी किसी ने बोल दिया, पुराने फॉलोअर्स ही थे, उसने पर्सनल मैसेज भेजा है कि सर आपने हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा ये सब क्यों डाला, आप तो हमेशा शिव भक्ति का ही बात करते हो, तो वाई हैव यू पुट दिस हनुमान जी। तो मैंने बोला यार देख, आज सबसे पहले तो आज एक ट्यूसडे है, राइट, एंड हनुमान जी और शिव में मैंने कभी एक डिफरेंस तो किया नहीं, किसी भी गॉड गॉडेसेस में डिफरेंस नहीं करता हूँ, सब तो एक ही है। तो ऐसा है, फिर बात क्यों बोल रहे हो। सैटरडेज़ को नॉर्मली मैं हनुमान जी और काल भैरव से कनेक्टेड होता हूँ, तो सैटरडेज़ का पोस्ट आप यूजुअली मेरा देखोगे ना तो हनुमान जी काल भैरव का होता है, कभी कभार शनि देव का वो रहता है, बहुत बहुत कम। तो मैं जिन गॉड
गॉड और जिन गॉड्स का फॉर्म के साथ कनेक्टेड हूँ, जिन टेम्पल्स को मैंने खुद से विजिट किया, मैं कभी सोमनाथ का नहीं डालता हूँ, मुझे नहीं पता सोमनाथ कैसा है क्या है, मैं कभी गया ही नहीं हूँ तो मेरे को क्या पता, ठीक है। मैं केदारनाथ का डालता हूँ, महाकालेश्वर का डालता हूँ, ठीक है ना, तो जगन्नाथ जी का डालता हूँ, वैष्णो देवी का, जहाँ मैं गया हूँ, जिस गॉड गॉडेसेस को एक्सपीरियंस किया हूँ, और जब मैं उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तभी मैं वैसा कोई रील क्रिएट करता हूँ या आप लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, राइट। तो ये कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है कि कभी भी कुछ भी देखा चिपकाते गया। मैं जब तक कनेक्टेड फील नहीं करता हूँ ना किसी फ़ोटो के साथ, तो मैं वो फ़ोटो भी पोस्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगना चाहिए कि नहीं, ये फ़ोटो मेरे से बात कर रहा है, ठीक है ना, कनेक्टेड है, तभी मैं उस पर जो है ना थोड़ा मेहनत करता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा ही कभी नहीं करता हूँ, राइट। तो उसके बाद फिर मैं चित्रकूट से निकला तो मैं फिर बनारस गया, क्योंकि बनारस में मेरे को एक्चुअली कोई दर्शन वर्शन तो करना नहीं था, टू बी फ्रैंकली मेरे को मलाइयो खाना था, क्योंकि कहीं से मैंने सुना, मैं बनारस बहुत बार गया पर मलाइयो कभी नहीं खाया यार, ये क्या चीज़ है। एंड जब मैंने उसका प्रिपरेशन देखा यूट्यूब में तो मैं समझ गया कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, तो बिना खाए मैं उसका टेस्ट मैं कर चुका था, ठीक है ना, कि ऐसा होने वाला और मुझे टेस्ट करना था। ऐसा लगने लगा था कि मरने से पहले अगर मलाइयो बिना खाए अगर मैं मरा ना तो मेरे को आत्मा का मोक्ष नहीं मिलेगा। तो, तो मैं गया दोबारा बनारस, ठीक है। एंड बनारस गया, एंड बनारस जाके क्या ना कि ट्रेन में लिया मॉर्निंग को, मॉर्निंग का ट्रेन लिया तो नॉर्मली जो है ना बनारस थोड़ा टाइम से पहुंचा देता है। उस दिन वो रास्ते में कोई था, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे रेलवे ट्रैक्स में, पूरा दिन लगा दिया। फाइनली मैं शाम को पहुंचा, ठीक है, शाम को पहुंचा तो रात को मलाइयो मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो सुबह को या दिन में प्रिपरेशन होता है यूजुअली उसका, रात में उसका प्रिपरेशन होता है, सुबह में बेचना स्टार्ट करता है, दिन में ख़त्म हो जाता है। अब मैं शाम में गया, मुझे लगा नहीं मिलने वाला है, अब तो ख़त्म हो गया, पर भगवान की दया से मिल गया, और मैंने एक शाम में करीबन 4 प्लेट मलाइयो खा लिया, 4 कप जैसे बोल लो मलाइयो खा लिया, कढ़ाई वाला दूध भी पिया, ठीक है। तो और रात भर मैं बनारस घूमता रहा इसी तरीके से, इसीलिए आप मेरे जो अब मैंने फ़ोटो भी शेयर किया था बनारस का घाट का, रात का 12 बजे का था, ठीक है ना। सारा दर्शन करने के बाद मैं तो काल भैरव जी का दर्शन किया, तो इस बार मैं काल भैरव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुआ, जैसे पहले कभी नहीं होता था, ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब भैरव का एनर्जी कैसा होता है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यू बिकम कम्प्लीटली फियरलेस, ठीक है, एंड यू कम इनटू कम्प्लीटली हाई वाइब्रेशन, एंड एक स्पीड होता है भैरव के एनर्जी में, स्पीड होता है। हनुमान जी के में वो नहीं होता, हनुमान जी की एनर्जी ठहराव है, शांति है, एक जगह प्रसन्नता है। भैरव का एनर्जी में वैसा नहीं है, प्रसन्नता तो रहता है उसमें भी, पर भैरव का एनर्जी में क्या है, ज़्यादा स्पीड आ जाता है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपको चाहिए, ठीक है ना। एंड एक रफ्तार आ जाता है आपके सोच में, आपके जो है ना ऑरा में बहुत ज़्यादा एक स्पीड आ जाता है, क्योंकि देर आर सो मेनी काइंड ऑफ भैरव अवेलेबल, ठीक है ना। बट नॉर्मली यू नो भैरव and especially Kal Bhairav is seen as among the one of the highest level of Bhairav, ठीक है ना, बहुत ही हाई लेवल का, हाई वाइब्रेशनल, अति उग्र, अति गुस्से वाला, ठीक है ना, वैसा वाला। तो काल भैरव दर्शन किया, एंड काशी जब भी आप जाओ, बनारस जब भी जाओ, तो काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही आपको आगे भी काशी विश्वनाथ का जाना चाहिए, ठीक है। तो काल भैरव जी का दर्शन किया, तो काल भैरव से मैं बहुत कनेक्टेड हुआ। काशी विश्वनाथ का हालत तो इतना गंदा है कि मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना चाहिए, धक्का मुक्की भीड़ भाड़, ठीक है ना, यही चलते रहता है वहाँ पे, तो इस तरीके से कोई दर्शन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। और 12 महीना वही है हालत, ठीक है ना। ये यूपी बिहार स्टेट को मेरे ख्याल से मैनेज ही नहीं करना था, क्योंकि ये आप बैद्यनाथ धाम जाओ बिहार में, झारखंड में, तो वहाँ भी वही हाल है, धक्का मुक्की मारा पीटी यही चलते रहता है, और विश्वनाथ में भी वही है, ठीक है। तो वहाँ दर्शन का मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल, ठीक है ना।
तो वही चलते रहता है। या तो आप यहाँ पे अगर रुद्राभिषेक कराओ सुबह में तो शायद आपको मौका मिले आराम से बैठने का, तो फिर आप बोलो नहीं नहीं सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। पर उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ेगा, 1 1.5 घंटा बैठ कर रुद्राभिषेक कराओ, पंडित को अरेंज करो ये वो, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली ज्योतिर्लिंग के मामले में ना बैद्यनाथ धाम और यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ है ना, आई विल पुट इट एट द लास्ट टू ज्योतिर्लिंग जो आपको दर्शन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट। बहुत ही घटिया अरेंजमेंट होता है आज भी, चाहे कॉरिडोर बन गया, आप लोग रील वील देख के चले जाओगे खुश होके जंप करते करते, और वहाँ पे आपका धनिया पुदीना चटनी बना देगा, ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। जिंदा वापस आ जाओ बिना हाथ पैर तोड़वा के उस वही एक अपने में एक चमत्कार हो जाएगा कि आप मंदिर के अंदर भी गए और जिंदा वापस आ गए, बिना धक्का मुक्की का, बिना किसी का गाली गलौज का, ठीक है ना। तो क्या फ़ायदा। और मंदिर का प्रीमाइस तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है पहले से। पुराने जो एक फील होता था मंदिर दर्शन करने का ना, वो सब चला गया है। अभी ऐसा लगता है कि कोई मॉल में घूम रहे हो आप, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हो, चारों तरफ एलईडी लाइट्स और बड़े बड़े एंट्रेंसेस, गेट 1 गेट 2 गेट 3 गेट 4 शॉपिंग। अब काशी विश्वनाथ से बाहर निकलिए, पानी पूरी खाना है या बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बनारसी साड़ी खरीदना है, ये सब तो ग्लैमराइज्ड और कमर्शियलाइज्ड, क्या मैं बोलूँ, ऐसा ज़्यादा कर दिया है जो कि बहुत गलत है एक तरीके से, ठीक है ना। उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, पर खैर अब यही चल रहा है तो यही सही आज के डेट में। शाम का नहीं, गंगा आरती कहाँ देख पाएंगे भाई, क्योंकि मैं शाम को पहुँचा, ठीक है ना। आप सोचो मेरा जो प्रोग्राम था दिन में 12-1 बजे पहुँचने का था, एंड शाम में घूम के गंगा आरती दर्शन करके रात को 8-9 बजे का ट्रेन लेके वापस आने का था, ये मेरा था। पर मैं पहुँचा ही वहाँ पे लैंड किया तो 5:30 बजे के अराउंड में पहुँचा। अब वहाँ पे अगर मैं गंगा आरती देखने जाता, ठीक है ना, तो बाकी सारा शेड्यूल गड़बड़ होता। तो मैं वहाँ से निकला, मलाइयो खाया, क्योंकि मेरा मेन एजेंडा दर्शन करना नहीं था, मलाइयो खाना था। मलाइयो खाया, मलाइयो खाने के बाद काल भैरव का गया। परमिशन तो उन्हीं से लेना है ना दर्शन करने का। काशी का कोतवाल बोलता है ना, इज़ लाइक अ इंस्पेक्टर पुलिस ऑफ काशी। तो काल भैरव का ना ये कहा जाता है कि लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, क्योंकि बिना काल भैरव का परमिशन का वहाँ पे मौत भी नहीं आ सकता आपको, ठीक है ना। तो काल भैरव का परमिशन होगा तभी मौत एंटर करता है काशी में, अगर आप हो तो, नहीं तो आपको आपका मौत भी नहीं आएगा। काल भी डरता है वहाँ पे एंटर करने के लिए जब तक काल भैरव का इजाज़त ना हो, ठीक है। तो काशी में आपका ऐसे बिल्डिंग्स हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पे एजेड लोग जाते हैं मरने के लिए। वो 30 दिन का रूम बुक करके बैठते हैं, 2 महीने का, कि शायद मैं मर जाऊँ, शायद मैं मर जाऊँ तो यहीं पे मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे श्मशान घाट है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका शरीर जल जाए ये उम्मीद में। तो काशी का ये भी महत्व है, ठीक है। लोग मरने के लिए भी जाते हैं। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि काशी विश्वनाथ भी आप दर्शन करने जाओ तो वैसे भी आप मर के ही वापस आओगे, जिंदा वापस आना मुश्किल है, तो शायद वहीं आपका मृत्यु हो जाए, ठीक है। ऐसा घटिया अरेंजमेंट होता है वहाँ पे। तो मैं शाम को गया, शाम को जाने के बाद मलाइयो खाया, नाश्ता किया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं काल भैरव गया। काल भैरव का दर्शन करने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद मैं विश्वनाथ चला गया, काशी विश्वनाथ। और शनिवार का दिन था, शनिवार का रात था। तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद वो धक्का मुक्की से बच के निकलने के बाद, अब तीसरा जो जगह है, अगर कोई गैस कर सकता है तो बताओ, थोड़ा सा मैं 30 सेकंड देता हूँ आप लोग, मैं कहाँ गया होगा, गैस करो। काल भैरव किया, काशी विश्वनाथ किया, उसके बाद मैं कहाँ गया, क्योंकि इतने तब तक तो गंगा आरती भी निकल गया था, ठीक है ना। गंगा जी में तो मैं पहुँचा रात को 12 बजे, ठीक है। मैं कहाँ गया होगा, किसी को अगर बनारस का आइडिया है तो बता सकता है। अरे जल्दी सोचो भाई, 30 सेकंड दिया है। आप लोग ऐसे सुन्न हो जाते हो ना कि ऐसा लगता है कि अफीम की गोली खा के सो गए हो। किसी को कोई आइडिया नहीं, कोई नहीं बनारस गया आज तक आप में से जो सुन रहे हैं अभी। तो मैं वहाँ से फिर मैं गया संकट मोचन हनुमान जी। वैसे भी सैटरडे का दिन था और हनुमान धारा से जो मैं आया था तो दर्शन मेरे को, ठीक है ना, तो काल भैरव का करना था। सैटरडे का इम्पोर्टेंस है काल भैरव का दर्शन का। और भू का क्या मतलब होता है प्रतिभा, BHU लिखा है, व्हाट इज़ भू। तो फिर मैं
संकट मोचन। और आप देखो ये काशी का जो संकट मोचन मंदिर है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक टाइम था अराउंड आज से 10 साल पहले हो सकता है कि ये टेररिस्ट ने संकट मोचन मंदिर में बॉम्ब रखा था, ठीक है, अयोध्या में भी रखा था। तो संकट मोचन मंदिर में बॉम्ब रखा था पर वो ब्लास्ट नहीं हुआ, ठीक है ना किसी तरीके से उसका पता चल गया और वो ब्लास्ट नहीं हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है वहाँ पे। तो लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा था वहाँ भी। तो वहाँ भी मैं कोई लाइन वाइन में नहीं लगा, जो है ना फटाफट दर्शन किया, क्योंकि चीज़ें भी बहुत सारा कवर अप करना था, ठीक है। तो वहाँ से फिर मैं निकला, फिर से मलाइयो खाने में चला गया, ठीक है ना, कि मलाइयो ख़त्म ना हो जाए। और वैसा ही हुआ भी, ख़त्म हो गया। तो रात को मैं गया तो सब लोग, वो क्या है ना, बनारस में आपका ये सब बहुत मिलता है, ठंडाई, ठीक है ना, भांग वाला ठंडाई, ये सब वो पूरा रात मिलता है। तो यही सब मिल रहा था, कढ़ाई वाला दूध पिया। फिर मैंने बोला कि यार मेरे को ठंडाई वंडाई नहीं पीना है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा पर मलाई वो सब जगह नहीं मिलता है। तो मेरे को बोलो, वो लोग बोला कि नहीं सर नहीं मिलेगा, छोड़ो भूल जाओ, कल सुबह खा लेना। मैंने बोला मेरे को रात में रिटर्न भी होना है, ठीक है ना, क्योंकि अगले दिन फिर मेरे को कहीं और ट्रैवल करना था। तो उसने डिस्करेज किया। मैं बोला नहीं यार मैं ढूंढ के रहूँगा। मैं गया किसी एक दुकान में, तो वहाँ पे कोई कपल कुछ ऐसे खरीद रहे थे। दूध वाला दुकान में मिलेगा मलाइयो, जहाँ पे दूध के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मैंने भैया को पूछ लिया, भैया मलाइयो होगा? बोला क्या बात है भैया, रात के 12 बजे भी आप मलाइयो ढूंढ रहे हैं, जो कि लोग सुबह ढूंढते हैं, दिन में ढूंढते हैं। बोला हाँ भाई है। मैंने बोला कितना है? दो दो कप्स है, दोनों मेरे को दे दो, मैं खा लूँगा, ठीक है ना। तो वो कपल लोग को पता नहीं था, तो वो लोग भी पूछने लगे ये क्या ऐसे ढूंढते हुए आए, यहाँ पर स्पेशलिटी है वहाँ का। तो मैं करीबन एक शाम में 4 कप मलाइयो खा गया और कढ़ाई वाला दूध पिया। तो 5 कप मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स का ही ऐसे खा लिए। और बनारस में ऐसा ना छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ें बहुत सारे मिलते रहता है, जो कि एंशंट टेस्ट वाला है, ठीक है, जो कि आपको बाकी शहरों में नहीं मिलेगा। मलाइयो भी उनमें से एक है, सो वो स्वीट डिश है। तो वो खाने के बाद तब मैं गंगा घाट गया। गंगा घाट में थोड़ी देर बैठा, 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसा, है ना। तो फिर वहाँ से फिर मैं लौट गया, ठीक है। तो ये सब करते करते मैं सोचा था गंगा घाट से आप लोगों के लिए लाइव करूं, पर आप सोचो इतना हौच पौच में अगर मैं रात के 12 बजे, तो कितने लोग अटेंड करेंगे, है ना। फ़ोन का बैटरी भी देखना है एंड फिर रिटर्न भी होना है। तो फिर मैं रिटर्न हो गया रात में अराउंड 2 बजे। एक अच्छा ट्रेन मिल गया मेरे को, उसमें मैं आ गया, ठीक है ना। तो एंटायर लास्ट 1 मंथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग था, बिजनेस रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड, फ्रेंड्स से मिलना, ये सब। एंड 2-3 फॉर्म ऑफ गॉड गॉडेसेस से तो मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील किया। जगन्नाथ जी तो पहले से है ही। दक्षिणेश्वर का मैंने दर्शन कोलकाता में किया, पर जो फील किया मैंने हनुमान धारा में जाके, जब मुझे कॉइन मिला वैष्णो देवी का हाथ में। एंड जब भी मुझे ऐसा कॉइन मिलता है ना, जिसको नॉर्मल कॉइन आता है मैं कभी नहीं चेक करता हूँ, जेब में डाल देता हूँ। पर जब भी मैंने नोटिस किया है कि जब भी माता का चित्र वाला या वैष्णो देवी वाला जब भी कॉइन मिलता है ना मेरे को, मैं वो कॉइन को आसानी से जेब में रखता ही नहीं हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या है ये। तो मैंने पलट के देखा तो उसमें वैष्णो देवी का फोटो था, ठीक है। ये हर बार होता है। बाकी कॉइन्स को मैं ऐसे डाल देता हूँ, कौन चेक करेगा भाई। 5-10 कॉइन ऐसे आ गया कि मान लो 2-3 कॉइन भी आ गया, कोई चेक करेगा? आप सीधा डालोगे, स्पेंड कर लोगे। पर जब भी मेरे हाथ में वैष्णो देवी का फोटो वाला कॉइन आता है ना, फील ही अलग होता है हाथ में, ठीक है ना। फिर मैं देखता हूँ ये कॉइन क्या है, पलट के देखा तो वैसा वाला कॉइन था। तो फिर और काल भैरव दर्शन में पहले भी बहुत बार किया हूँ, पर फर्स्ट टाइम में कनेक्टेड फील किया काल भैरव से बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एंड भैरव एंड हनुमान जी, इन के ऊपर मैंने शायद त्रिनेत्रज में या कहीं पे पहले भी बहुत बार बोला है, दे बोथ आर फॉर्म ऑफ सेम गॉड, ठीक है ना। मंगल स्वरूप है दोनों का, दोनों को कुछ भी अंतर नहीं। एक काफ़ी उग्र है, एक थोड़े बैलेंस्ड है, इतना ही अंतर है। नहीं तो भैरव बोल लो, हनुमान बोल लो, गणेश बोल लो, कार्तिक बोल लो, ठीक है ना, या मंगल प्लैनेट एज अ आप देख लो, ठीक है ना। वो ये सब एक ही है, अलग अलग फॉर्म है। वो अब आप किससे कनेक्टेड होते हो, आपका हॉरोस्कोप में कौन सा गॉड के साथ अलाइनमेंट सही बैठता है, उसी फॉर्म में और उसी जो है ना आप, एंड आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कितना है। कि मान लो काल भैरव में मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार गया हूँ,
एक्सपोजर जो कनेक्शन मैं इस बार फील किया वो मैंने पहले क्यों नहीं किया, इवन आई डोंट नो, ठीक है, शायद मेरा टाइम ही नहीं आया था, ठीक है ना। हर एनर्जी, शिव को मैंने पहले फील किया, शक्ति को मैंने पहले फील किया, ठीक है, हनुमान जी को मैंने पहले फील किया, पर काल भैरव को मैंने इस बार जो फील किया ना, वैसा मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं फील किया, ठीक है। एंड रात भर मैं बनारस में अकेला घूमता रहा एंड मेरे को ऐसा फील हुआ कि काल भैरव मेरे साथ ही हैं, ठीक है ना। बनारस इज़ अ वेरी नोटोरियस प्लेस, ऐसा है नहीं कि सेफ़ है। एज अ फीमेल कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि मैं सोलो ट्रैवल कर लूँगा, गायब हो जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गए, ठीक है। तो इट्स अ नोटोरियस प्लेस ऑब्वियसली, तो मैं अकेला ही घूम रहा था, ठीक है। एंड आई कुड फील द एनर्जी ऑफ काल भैरव, जो मैं दर्शन करने के बाद जो मैं घूम रहा था ना, आई कुड फील द एनर्जी ऑफ काल भैरव, वेरी पावरफुल। एंड एक बार कभी भी आपके साथ ऐसा शक्ति जुड़ जाए ना, इन द फॉर्म ऑफ भैरव या इन द फॉर्म ऑफ मंगल, ठीक है ना, तो फिर आपका क्या है ना कि वो भय अलग लेवल पे, भय ही नहीं रहता सबसे पहले तो, ठीक है ना। एप्रीहेंशन, डर, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाता है। वो मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगा, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, बट वो अलग ही होगा। अगर आप एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में तभी आप कर पाओगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर एक बिजली का तार दौड़ रहा है। आई थिंक अब मैं थोड़ा सही बता रहा हूँ भैरव के लिए, ठीक है ना। भैरव का एनर्जी कैसा होता है ना कि आपके अंदर अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ दूँ, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है ना। 440 वोल्ट का मान लो इलेक्ट्रिक, आपको कैसा लगेगा कि मैं ये तोड़ दूं, ये फोड़ दूं, कुछ भी करूं, ठीक है ना, मैं कर सकता हूं, मैं थकूंगा नहीं, ठीक है ना। मैं ऐसे दौड़ता रहूं, मैं सुबह तक दौड़ता रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं, वैसा वाला एनर्जी होता है भैरव का, ठीक है। तो मुझे फील हुआ एंड जब तक मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद भी इवन आज तक भी मैं काल भैरव के एनर्जी में हूँ, ठीक है। जबकि काल भैरव के जो मेन टेम्पल उज्जैन में कहा जाता है, जहाँ पे उनको लिकर, अल्कोहल, शराब चढ़ता है और वो पिलाते हैं तो वहीं पी भी लेते हैं, ठीक है ना, वो गायब हो जाता है, वही प्रसाद होता है। लोग बॉटल का बॉटल वहाँ पे चढ़ाते हैं और बाकी अपने घर प्रसाद के तौर पे ले आते हैं और वो वहीं गायब हो जाता है। वो प्लेट में जो देते हैं ना, आपने वीडियोस विजुअल्स भी देखे होंगे कई बार, ठीक है। तो वो मेन टेम्पल है काल भैरव का, क्योंकि वो जागृत फॉर्म में है वहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर कोई लिकर पी रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हो। पर काशी विश्वनाथ में ऐसा नहीं है, वो सिंपल नॉर्मल एक टेम्पल है, एंशियंट टेम्पल है, काफ़ी ज़्यादा पुराना, पता नहीं कितने हज़ारों साल से वहाँ पे होगा। पर काशी का कोतवाल जैसे कहा जाता है ना, काशी मेनली इज़ नोन फॉर काल भैरव ओनली, ठीक है। तो काल भैरव का वहाँ पे इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इट इज़ हिज वन ऑफ द डेस्टिनेशन पॉइंट। जैसे हनुमान टेम्पल तो मैंने भी लाइफ में कई सारे विजिट किए बचपन से लेके आज तक, पर हनुमान धारा में जो मेरे को महसूस हुआ ना कि रियल में कभी हनुमान जी का वहाँ पे प्रेजेंस रहा है, रियल में कभी हनुमान जी का जो है ना आपको एनर्जी के साथ रूबरू होना है लिटरली, तो वो चीज़ हनुमान धारा में एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको जो है ना मुझे काल भैरव का टेम्पल काशी में वो एक्सपीरियंस हुआ, राइट। तो इट वाज अ really very different sort of experience. I'm not able to put it into words, exactly words by words. लास्टली जो मैंने एक बोला था कि भैरव का एनर्जी कैसा होता है ना, जैसे कि आपके शरीर में एक इलेक्ट्रिक करंट का जैसा एनर्जी दौड़ता है, पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ होगा उस एनर्जी से। कुंडलिनी राइज होता है तब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील होता है, पर कुंडलिनी आपको तकलीफ देगा, कुंडलिनी में आपको मज़ा नहीं आएगा, कुंडलिनी आपको फाड़ कर रख देगा, आपको तकलीफ देगा, आपको हेडेक देगा, आपको नौजिया देगा, ठीक है ना। आपको हो सकता है बैक पेन दे देगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ जो है ना नेगेटिव भी कुंडलिनी लेके आता है, ठीक है, वो शक्ति है। पर आई डोंट नो भैरव में भी किसी ने अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस किया तो आई डोंट नो अबाउट देम, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम भैरव से कनेक्ट हुआ, काल भैरव से, उनका एनर्जी के साथ, तो फिर मैं तो भाई दीवाना हो गया उनका एनर्जी का, ठीक है ना। वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। तो आप लोग भी करते रहिए, कभी ना कभी आप लोग का भी नंबर लगेगा। और जो लोग अभी सुन रहे हैं
या बाद में भी कोई अगर सुनेंगे रिकॉर्डेड वीडियो में तो, एंड इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एनी गॉड गॉडेसेस नॉट इन इल्यूजन, ठीक है ना, इल्यूजन के दुनिया से बाहर आओ। सपने में आया काली माँ ने केला छील के मेरे मुंह में डाल दिया, रसगुल्ला निचोड़ के मेरे को खिलाया, मैंने काली माँ को एक्सपीरियंस किया, अरे वो सब बकवास है, वो तुम्हारा दिमाग का फितूर है। वो सबसे बाहर आओ। रियल में जागते हुए जागृत अवस्था में जब तुम सांस ले रहे हो, जब तुम खाना खा रहे हो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो, जब तुम सोच रहे हो, तब, ठीक है ना, अवेकन स्टेज में क्या तुमने किसी गॉड गॉडेसेस का एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है तो मुझे वो शेयर करो। आई वुड लाइक टू लिसन, ठीक है ना। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। वो इफ़ एनीबडी राइट नाउ कैन शेयर, मैं भी थोड़ा सुनूं, ठीक है ना। और इफ़ लेटर ऑन इफ़ एनीबडी वांट्स टू शेयर देन दे कैन शेयर, ठीक है। वो सपनों वाला चीज़ नहीं, ठीक है ना, कि मेरे को लगा क्या बोले कबूतर का पंख मैंने देख लिया बेडरूम में, तो एंजल मेरे चाचा है, मामा है ना। काली माँ का मैंने सपने में देखा, वो मेरे से दूध का गिलास मांग लिया, माँ का मैंने फील किया। वो सब फालतू का बात है, वो सब फितूर है, डिल्यूजन है, आपका दिमाग का कीड़ा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। वो कभी भी आप 10 काली माँ का वीडियो देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ऐसे सपने आने लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है। जब आप जागृत अवस्था में महसूस करते हो हर सांस के साथ, ठीक है ना, तभी जो है ना उसको आप मानो कि हाँ एक्चुअल में आपने महसूस किया है। सपने में तो आपने कई बार ट्विन फ्लेम के साथ सेक्स भी किया होगा, तो क्या हो गया आपका इस लाइफ में शादी, हनीमून मना लिया? तो वो सब फालतू का बात से कोई मतलब नहीं। काल भैरव को पंपा ने भी एक्सपीरियंस किया, कुछ तो लिखा है इन्होंने। सुकन्या नंदी फर्स्ट या एंटायर में मेरा फ्रेंड की फैमिली, मतलब पूरा एक बच्चा भी था हमारे साथ में, उसका बेटी, उसने भी किया, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, वो मेडिटेशन का फीडबैक आया है किसी का। चलो, तो इन्होंने लिखा है कि आपके साथ मेडिटेशन बहुत ही अलग होता है, सबसे अलग, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शिव साधना बाकी साधना से अलग क्यों है, महाशिवरात्रि के लिए क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा है ना कि साधना तो बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे माता का जागरण होता है, ठीक है ना, राम नाम का जाप होता है रात भर, ऐसा बहुत सारा होता है। पर उनमें क्या है ना कि ख़ास तौर पे ऐसा कोई नियम स्ट्रिक्ट नहीं होता बेनिफिट लेने के लिए। बस बैठो, आप राम नाम जाप करो, जागरण करो, कीर्तन करो, जय माता दी बोलो, ठीक है ना, नाचो गाओ। कृष्ण जी का भी ऐसे जागरण होता है जन्माष्टमी में, नाचे नाचे गाते फिरते रहते हैं, उसका कोई नियम ही नहीं रहता है, ठीक है ना। पर शिवरात्रि का वैसा नहीं है। शिवरात्रि का अगर महाशिवरात्रि का अगर आप साधना कर रहे हो तो उसका बेसिक थंब रूल नियम क्या है कि आपको उस दिन फास्टिंग में रहना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक। मैं तो शिवरात्रि में नॉर्मली मेरा फास्टिंग अगर काउंट किया मैंने कभी, तो 40 घंटा करीब का फास्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन शिवरात्रि है, जैसे मान लो अगर आज शिवरात्रि है, मान लो, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि आज अगर मान लो शिवरात्रि का रात है, तो मैं कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग मैं कुछ डिनर करूँगा, ठीक है ना, शाम को जो भी खाया पिया मैंने, रात को मैंने कुछ नहीं खाया, दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, आई एम ऑन फास्टिंग। शाम को रात को मैंने साधना किया, फिर रात भर भी कुछ नहीं खाया, ठीक है ना, या जो भी खाया तो एज अ फास्टिंग के तौर पे जो भी खाया, फ्रूट्स एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है ना, सात्विक चीज़ें खाया। एंड कल सुबह का जो है ना पूजा ख़त्म करने के बाद मैंने खाया। तो आप देखो पूरा एक शिवरात्रि का जो टेन्योर है उसमें तो 24 घंटा कुछ नहीं खाया। उससे एक दिन पहले जो मैंने डिनर किया था तो रात में कुछ नहीं खाया, ठीक है ना, 10-12 घंटा उसमें भी ऐड कर लो। एंड शिवरात्रि का जो 12 बजे के बाद सुबह का 8 या 9 बजे तक जब तक आप खाना खाते हो ना, तब तक भी कुछ नहीं खाया, फिर से 10 घंटा ऐड कर लो, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो 40-45 घंटे का फास्टिंग हो जाता है शिव साधना करने के लिए। तो आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, रेडी होता है ये साधना करने के लिए, ठीक है। तो शिवरात्रि का साधना ये होता है। दूसरा नियम ये है इसमें कि आपको आपका स्पाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होना पड़ेगा,
योर स्पाइन नीड टू बी स्ट्रेट। ये बेसिक बेसिक नियम है। शिवरात्रि का साधना ऐसा नहीं हो सकता है कि बेड में आप लेटे लेटे, तो फिर देखो वो बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं, आप वो रात को स्पॉइल कर दोगे। आपको पूरा रात अपना स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका स्टार्स के जो अलाइनमेंट होगा वो उसी तरीके से होगा कि अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट है, आप लेटे नहीं हो, ठीक है ना, आपने रिलैक्स नहीं किया, तभी आपको उस रात का एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो आपका स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, 30-40 घंटे का फास्टिंग भी मेंटेन करना है, ठीक है, और उसके बाद साधना भी करना है। जो भी आपका साधना का जो भी गाइडेंस है आपके पास, जो गुरु मंत्र है या जो भी तरीका आपको पता है वो भी करना है। उसके बाद आपका साधना सफल होता है और उसको बोला जाता है शिवरात्रि साधना, ठीक है। अब आप बोलो, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनके पास कोई तौर तरीका नहीं है, वो शिवरात्रि का रात को क्या करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में फास्टिंग करेगा, रात को खाएगा पिएगा, मूवी देखेगा। आज तक वाला दिखा रहा होगा कि देखिए देश भर में शिवरात्रि का जश्न मनाया गया, भोले बाबा में इतना दूध खर्च किया, बेलपत्र चढ़ाया, ये हुआ, ये मंदिर का डेकोरेशन देखिए, लाइट देखिए, उधर सदगुरु अपने बैंड बाजा लेके रॉक गाने पे नाच रहे होंगे, ठीक है ना, यही सब होगा। तो ये सब में साधना आप कहाँ करोगे, कहाँ होगा। फाइनली आप जो है ना 8-9 बजे तक जैसे रेगुलर रात होता है आप थक जाओगे और रात को सो जाओगे, ठीक है। तो शिव साधना अगर करना है तो आपको 2-3 दिन पहले, इनफैक्ट 7-8 दिन, मैं तो जो नियम आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ एक बार इनरोल होने के बाद, वो 7 दिन पहले से नियम चालू हो जाता है, 7 दिन 8 दिन पहले से, कि आपको क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फाइनली शिवरात्रि का होता है तो आपको एनर्जी भी प्रिजर्व करके रखना होता है उस रात का साधना के लिए। नहीं तो बच्चों का खेल नहीं है कि आप 30-40 घंटे तक खाना भी नहीं खा रहे हो, पूरा रात आप जग भी रहे हो, आपका स्पाइन ऊपर से स्ट्रेट भी होना है। ऐसा नहीं कि जगने का मतलब कि आप किसी भी तरीके से जग रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं, ये सब फालतू का चीज़ों में मत पड़ो। कि अगर किसी ने आपको ये बोला है कि शिवरात्रि के रात में जगना इम्पोर्टेंट है तो मैं रात भर 2-3 मूवी देख लूँगा, पॉपकॉर्न खा लूँगा या अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लूँगा तो जगना हो गया, वो सब बकवास है, ठीक है ना। स्पाइन स्ट्रेट होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आप करो। वो तभी संभव है जब आप एक पैटर्न में पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मबल के साथ, डिसिप्लिन के साथ करोगे, तभी आपके लिए पॉसिबल है, नहीं तो वो रात वेस्ट हो जाएगा। साल में एक बार वो रात आता है और वो भी अगर आप तौर तरीके से नहीं करोगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। शिवरात्रि का फास्टिंग में लगभग 2003 में मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मेरे को याद है। और उस टाइम का फास्टिंग कैसा था 2003 का, कि शाम होते होते मुझे इतना ज़्यादा भूख लग गया था कि मैं रात को खाना खा के सो गया था। साधना, गुरु दीक्षा, ये सब तो दूर दूर तक कुछ था ही नहीं लाइफ में। आई वाज जस्ट इन अ स्कूल, पढ़ रहा था मैं, ठीक है। तो 2003 का फास्टिंग ये था कि मैं शाम को जाके ऑरेंज जूस पिया था, मेरे को इतना याद है। इतना ज़्यादा थकआउट, क्योंकि उस दिन का एनर्जी इतना हाई रहता है ना कि अगर आप एनर्जेटिकली उतना केपेबल नहीं हो और ऊपर से उस दिन में फास्टिंग कर रहे हो तो आपको लेटाने के लिए काफ़ी है, आपके शरीर वो एनर्जी झेल ही नहीं पाएगा। तो दिमाग एकदम सुन्न हो गया, भूख एकदम बढ़ गया। एंड मैंने बोला यार क्या मैंने ठान लिया शिवरात्रि साधना करने का, पागलों का चीज़ है यार, हटाओ साला। शाम को जूस वूस पिया मैंने और ख़त्म हो गया मेरे लिए, उतना ही था शिवरात्रि का फास्टिंग या व्रत जो भी है। और ये सिलसिला ऐसे ही अगले 5-6 साल, 7-8 साल, 10 साल तक लगभग चला। बस फ़र्क इतना होता था कि मैं शाम को 5 बजे जब या 6 बजे मैंने किया था, उसके बाद थोड़ा सा मेरा बढ़ता गया, हर साल में एक दिन। फिर मैं शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे करके बढ़ाते गया। एंड अभी तो और जो है ना, फिर बढ़ाते बढ़ाते रात में मैं भी कभी कभी सदगुरु का ऐसे वीडियो देख लिया करता था, ठीक है ना। पर जब गुरु दीक्षा मिला तो मैंने बोला कि नहीं, ये सब बकवास तो नहीं करना। हाँ, बीच में अगर आप ब्रेक ले रहे हो, साधना करके बीच में ब्रेक ले रहे हो तो 10-15 मिनट आप देख सकते हो, ठीक है ना।
पर रात भर ऐसा गाना गा के नाच के वो साधना नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आई डोंट नो, इतना बड़ा स्पिरिचुअल गुरु होने के बाद भी, सो कॉल्ड, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग और ट्राइंग टू compete with him or anything at that set. I have attended his live sessions also in physical, in person, I mean to say, ठीक है ना। जब सदगुरु सामने में आया तो काफ़ी कमर्शियल बंदा लगा मेरे को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, पर वो उसको शेयर नहीं करता लोगों के साथ, ठीक है ना। आलतू फालतू इधर उधर का बातें, बकवास, और उनका जो है ना बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा एंड बड़े बड़े स्टेज एंड लाइट शोज़, और टिकट्स भी इतने महंगे होते हैं, 10,000 15,000 का एक टिकट होगा, ठीक है ना। कॉमन टिकट भी आप लोगे फिर भी आपको मेरे ख्याल से 2,500 या कितने का पड़ेगा, ठीक है ना, उससे नीचे का नहीं होगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है ना, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं चारों तरफ, बड़े बड़े कैमराज में वो दिखा रहा है, बस यही सब चल रहा है। तो जब सदगुरु सामने में आए तो सब लोग जो इंथुजियास्ट थे वो लोग सोचा कि यार 20,000 का टिकट भी बेचा गया, 25,000 का टिकट भी बेचा गया, अब तो कुछ कराएगा ये बंदा। तो बैठाया वो, थोड़ा बहुत वो काल भैरव इधर उधर वो किया, वो अपना जो करना है। तो मज़ा आने लगा मुझे भी, ठीक है ना, कि है एनर्जी तो है बंदे में, वो ट्रैक में ले जाओ। और मेरे साथ साथ जितने भी बाकी लोग थे, इंडिविजुअल्स जो पहुंचे हुए थे, वो लोग भी एक टक से उस डायरेक्शन में जाने लगा। 15-20 मिनट हुआ होगा जब लोगों को मज़ा आने लगा, एक्चुअल में उस वाइब्रेशन में एंटर किए कि अब कुछ डीप मेडिटेशन कुछ कराएगा, डीप हीलिंग कुछ कराएगा। उसी समय वो वाइंड अप करके स्टेज छोड़ के भाग गया पीछे, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि यार फिर ये क्या था, पूरा शाम में सारा बकवास हुआ, ठीक है ना, सब कुछ हुआ, नाच गाना बैंड बाजा बारात सब कुछ हुआ। जब मेन मेडिटेशन का टाइम आया 15-20 मिनट, और उसमें भी वो बिना बताए पीछे पीछे का गेट से चला गया, भाग गया, ठीक है ना। तो वो मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। और शिवरात्रि के रात्रि में भी वही होता है, ठीक है ना, पूरा रात वहाँ पे लोग झूम रहे होते, गा रहे होते हैं। तो ऐसे भी लोग शिवरात्रि के साधना को, मतलब शिवरात्रि के रात को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और कौन जाके उन मूर्खों को समझाए कि यार ये रात साधना का है, ये रात वहाँ पे झूम के गाने गा के लाइव बैंड्स को देख के यूट्यूब में, या वहाँ पे जो तमिलनाडु में जाके भी जो लोग करते हैं वो सब करने के लिए नहीं है। घर में बैठो, आइसोलेशन में बैठो, साधना करो बैठ के, ठीक है ना। एंजॉय करने के लिए अगर उसको सुनना है तो थोड़ी देर के लिए करो, उसमें खो नहीं जाना है आपको। एनर्जी नाचने गाने में, वहाँ पे थिरकने में नहीं करना है, ठीक है ना, वेस्ट। यू आर नॉट गोइंग टू अ डांस क्लब और अ पब कि आप वो सब करो। और आप वैसे भी कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो कि आपको नाच के, ठीक है ना, जंपिंग जैट बन के जो है ना आपको साधना का फल मिलेगा। कृष्ण भक्ति तो भक्ति मार्ग है कम्प्लीटली। तो वहाँ पे लोग जन्माष्टमी के रात में रात भर जागते हैं, ये सब करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। शिव साधना, शिव स्थिर है। आप खुद देखो ना, आप जिस गॉड को इमेनेट करने का कोशिश कर रहे हो, कॉपी करने का कोशिश कर रहे हो, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है ना। उसका स्वरूप साधक का है, उसका स्वरूप साधना का। वो स्थिर रहता है, एक जगह बैठता है, शांत रहता है, और स्पाइन स्ट्रेट करके साधना करता है। तो आपको उसी का कॉपी करना है, पर आप ठीक उल्टा कर रहे हो, ठीक है ना। फिर कई लोग आया के बोलेंगे ज्ञानी बाबा की भाई शिव जी तो नटराज भी है, तो वो तो डांस करेंगे, तो भाई तुम भी करो, फिर नटराज वाला डांस करो ना, फिर वो तांडव करो, फिर तुम भी वो हिप हॉप डांस क्यों कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना। तांडव करो, तुम भी कर सकते हो, आता है, सीखा है, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो फिर शिव के साथ कंपेयर करना ही बेकार है, ठीक है ना। उनका मूलभूत स्वरूप एक मेडिटेटिव पर्सन का है, ठीक है। उनका मूलभूत स्वरूप नटराज का नहीं है। वो करने के लिए तो ऐसे तो बहुत सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना, पर उनका मूलभूत स्वरूप स्थिर है, शांत है, जैसे अभी आप देख रहे हो ना वैसा ही है, ठीक है। तो आपको भी वैसा ही स्टेट में बैठना पड़ेगा सिर्फ महाशिवरात्रि के रात में, तब जाके आपको वो ब्लेसिंग्स आपके अंदर प्रवेश करेगा, आपके शरीर में, ठीक है। बहुत ही मैजिकल नाइट होता है। एंड एवरी ईयर आप सोचो, मैंने आपको कब से बोला, 2003 ऑनवर्ड से बोला, इतना साल में हर साल। एंड उनमें से एक दो शिवरात्रि के रात में मैं भी सो गया था, ठीक है ना। कभी शिव से लड़ाई हो गया तो सो गया, कभी मन नहीं किया तो, कभी थक गया तो, कभी वर्कलोड, ऐसा। ऐसे में 3-4 शिवरात्रि मेरा इस तरीके से भी वेस्ट हुआ होगा। 3-4 तो मैं नहीं बोलूँगा, पर 2-3 डेफिनेटली हुआ है, ठीक है ना। 3 के ऊपर नहीं गया होगा।
पर 2 या 3, एक के ऊपर तो है, 2-3 तक तो मैंने भी इस तरीके से स्पॉइल किया है। पर वो 20 शिवरात्रि में से 2 अगर स्पॉइल हो भी गया तो 18 शिवरात्रि मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, चाहे फास्टिंग में, चाहे साधना करने में, चाहे स्पाइन को स्ट्रेट रखने में, ये सब, ठीक है, धीरे धीरे एवरी ईयर। वो 18 शिवरात्रि में से भी मैंने शायद 7-8 शिवरात्रि इस तरीके से किया होगा फुल्ली, ठीक है। तो आप हर साल जो है ना अपना मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में ओवरनाइट सक्सेस जैसा नहीं होता है कि फट से हो गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा बहुत करके होता है। साल में एक बार मौका मिलता है। पूरा जीवन में मान लो आप 60 साल अगर जिंदा रहे तो 60 साल में 60-70 साल से ऊपर तो आजकल कोई जिंदा भी नहीं रहता, मान लो 70 साल लगा लो, ठीक है ना। 70-75 साल आप 75 ईयर्स अगर आप जी गए धरती में, या 80 साल जी गए, तो उसमें आपको 40 साल तो ये समझने में लगता है कि शिव क्या है, ठीक है। 30 से 40 साल तो आपको ये समझने में लग जाता है कि शिव होता क्या है, शिवरात्रि को कैसे किया जाता है। आप रेडी नहीं होते हो फिजिकली मेंटली उस चीज़ को करने के लिए, उसके बाद आप कर पाते हो। तो आपका उन लाइफ का जो रिमेनिंग स्पैन है 30-40 साल का, क्योंकि 30-40 साल आपको समझने में लग गए, ठीक है ना, बाकी बचा 30-40 साल, अगेन 50%। उन रिमेनिंग 30-40 साल के अंदर आपको साल में एक दिन मौका मिलता है शिव साधना करने का, और वो भी आप आलतू फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देते हो। तो आप सोचो कितना रेयर एक चीज़ है जो आप उसको वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ के ऊपर आप सोचो, राइट। बहुत सारे योनि क्रॉस करने के बाद आपको मनुष्य योनि मिला है, एंड मनुष्य योनि में भी आपको ये बताने वाला, एक समझाने वाला बंदा मिला है शिवरात्रि साधना का, ठीक है ना, बारे में। एंड साल में एक दिन आता है बस, रोज़ रोज़ नहीं आता। हाँ, शिवरात्रि हर महीने में एक बार आएगा, पर महाशिवरात्रि का जो एनर्जी होता है ना वो बाकी शिवरात्रि मैच नहीं कर पाता। महाशिवरात्रि का एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। यानी कि अगर आप पूरा साल भर अगर आप नहीं भी कर पाते हो ना, पर अगर महाशिवरात्रि में अगर आप पूरा रात जग जाते हो, साल में देखो 4 रात्रि होता है, ऐसा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फॉर रिमाइंडर में फिर से बता देता हूँ। एक महाशिवरात्रि, एक आपका जन्माष्टमी की रात्रि, एक आपका होली का रात, ठीक है ना, होली, और चौथा आपका लक्ष्मी पूजा का रात, ठीक है। अब ये देखो चारों रात, आप देखो चारों में से एक होली को छोड़ के बाकी 3 रात जो है ना एक अंधेरा वाला ही रात है, अमावस के आसपास का रात होता है, ठीक है ना। और होली के टाइम में तो पूर्णिमा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये 4 रात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपका पूरा साल एक तरफ और ये 4 रात एक तरफ। अब इनमें से दिवाली के दिन आप लोग क्या करते हो? पटाखा फोड़ते हो, मिठाइयाँ खाते हो, नॉनसेंस काम करके सो जाते हो, वेस्ट। होली के दिन क्या करते हो? वही दिन भर भांग, लस्सी, होली, हैप्पी होली, दिन भर होली, कलर रगड़ाई, ये सब, घूमना फिरना, ठीक है ना। होली का रात भी आप नहीं जग पाओगे, वेस्ट। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी तो और ज़्यादा लोग पंडाल हॉपिंग करते हैं, ये जन्माष्टमी यहाँ गया, कृष्ण का जो है ना झूला झूला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लड्डू गोपाल बोल रहे हैं, वो रात भी वेस्ट। एक ही रात बचता है जिसमें ऐसा कुछ भी बकवास ना कभी पारंपरिक रूप से कभी हुआ है, ना कोई सजेस्ट करता है करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शिवरात्रि में क्या है, सुबह जाके 1 लोटा जल डाल दोगे, दूध चढ़ा दोगे शिवलिंग में, उससे ज़्यादा तो और कुछ यहाँ पे ताम झाम नहीं होता है, ठीक है ना। उस दिन में कि मिठाइयाँ बट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, घर को सजाना है ना, या आपको शिवलिंग शिवलिंग हॉपिंग करना है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह में या नवरात्रियों में भी लोग करते हैं ना, पंडाल हॉपिंग करते रहते हैं। यहाँ दुर्गा जी का देखते हैं, अरे भाई सब जगह एक ही यही करते रहो बैठ के, तो वो चीज़ नहीं होता। यानी कि इवन कल्चरल वे में भी अगर आप देखो, ट्रेडिशनल वे में भी जिस तरीके से महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज़ वेरी सिंपल, प्लेन। जाओ, सुबह उठो,
फास्टिंग में बैठो, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, वापस आओ घर में, फास्टिंग में बैठो, रात भर स्पाइन को स्ट्रेट करके साधना करो, सिंपल। दैट्स हाउ महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड। ठीक है ना। यहाँ पे कोई पंडाल नहीं लगता, यहाँ पे कोई शिव का कोई मूर्ति विसर्जन नहीं होता जैसे गणेश उत्सव में या इवन नवरात्रों में होता है। ऐसा कुछ बकवास नहीं होता यहाँ पे। ठीक है ना, कि आप पंडाल हॉपिंग कर रहे हो, मूर्ति विसर्जन कर रहे हो, ये सब। तो इस दिन में आखिर करना क्या है, तो सेलिब्रेट कैसे करोगे महाशिवरात्रि? फाइनली खुद से पूछो ये सवाल। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें ज़्यादा शोशा तामझाम है, एंड नेशनल हॉलीडे होता है देखो महाशिवरात्रि में। ठीक है ना, नेशन वाइड नेशनल हॉलीडे होता है, और दिन में करने के लिए कुछ भी नहीं है बाकी फेस्टिवल के जैसा। यानी कि साइलेंटली मैसेज ये है, बेटा साधना करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। यही है इस दिन को सेलिब्रेट करने का सबसे बेस्ट तरीका। नाउ ओनस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ यू यूटिलाइज दिस नाइट and this festival is up to you. I have told you the best way how महाशिवरात्रि is celebrated। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं होता है कि आपको ज्वेलरी डाल के जाना है दिखाने के लिए, महंगा साड़ी पहन के जाना है। ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं। या घर में कुछ ऐसा सुने हो कि महाशिवरात्रि के दिन घर में 56 भोग का पकवान बनता है? होली में तो बनता है, गुजिया बनता है कि नहीं? जन्माष्टमी में भी कुछ ना कुछ बनता है ऐसा कुछ। महाशिवरात्रि में क्या बनाओगे? घर में ठंडाई बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो और कुछ वो भी लोग ने शौक के तौर पे बना लेता है। ठीक है, मतलब बेसिकली महाशिवरात्रि के सेलिब्रेशन में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे कि आपका एनर्जी वेस्ट होता है। कुछ भी ऐसा रिचुअल नहीं है कि जिसमें आपको अपड़ा धपड़ी आपाधापी होता है ना, आना जाना, यहाँ जाना, ये करना, वो करना, इससे मिलना, ये ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि फाइनली ऑल दैट यू गॉट टू डू ऑन दिस नाइट, ऑन दिस डे इज बी ऑन अ फास्टिंग एंड डू द साधना। ठीक है, और वो भी अगर आप मिस आउट करते हो तो फिर यू हैव नॉट सेलिब्रेटेड व्हाट यू कॉल शिवरात्रि प्रॉपरली। ठीक है, इसका मतलब ये है, राइट। तो वो आप लोग अब देख लो, नो चॉइसेस अप ऑन यू गाइज, कितना आप लोग करते हो। ठीक है, हाँ, अगर कोई आएगा बैच फॉर्मेशन उसमें तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दोज people who have already done शिव साधना in past। ठीक है, either on the night of शिवरात्रि last year or other शिव साधना, they will be given first priority for the seats। ठीक है, और जो एकदम फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है करना चाहता है तो वो लोग भी आ सकते हैं। It's not open for all. I can reject people also and I have rejected people also in the past। हिंदू होना चाहिए सबसे पहले, नॉन हिंदू जो है ना मत करे। पहले मैंने ओपन किया था कि नॉन हिंदू भी सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट जब लोगों को इतना देख लिया ना तो अब मन नहीं करता कि मैं किसी और को जो है ना ये सब नॉलेज शेयर करूं। वो नॉलेज का भी अपमान होगा एक तरीके से। ठीक है, हिंदू हो, सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तभी जो है ना ज्वाइन करो। ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो सबसे पहले तो आप ये वैल्यूएबल डे को मिस आउट कर रहे हो नॉनसेंस चीज़ों में वेस्ट करके। एंड दूसरा, आप जो साल भर मेडिटेशन में लगे रहते हो और कुछ नहीं मिलता है, और ऐसा नाइट को भी आप वेस्ट कर रहे हो, तो फिर पूरा साल मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। मत करो फिर पूरा साल भी आप एंजॉय करो। जैसे आप महाशिवरात्रि के डे और नाइट को वेस्ट करने जा रहे हो, अगर कोई प्लान नहीं है तो पूरा साल को भी वेस्ट करो। फिर पूरा साल यूट्यूब वीडियोस देख के इधर उधर टाइम वेस्ट करके बाकी नॉनसेंस एक्टिविटी करके ये मत दिखाओ कि मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी मेडिटेशन इंथुजियास्ट, जो भी स्पिरिचुअल इंथुजियास्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, महाशिवरात्रि नाइट इज़ द वन एंड ओनली रेयर नाइट। ठीक है ना, जिसका कोई दूसरा कॉम्पेंसेट नहीं है कि आप इसको अल्टरनेटिव बोल दो कि नहीं महाशिवरात्रि को मैं इससे कॉम्पेंसेट कर दूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ रेयर
phenomena happening in the universe, right? तो ये है, राइट। चलो भाई, तो आई सपोज वही मुझे बेसिकली बोलने के लिए तो बहुत सारा कुछ मन था, पर पता नहीं कहीं ना कहीं से यही चीज़ पे फोकस रह गया मैं, एंड यही सब चीज़ें मुँह से निकला आज। तो इससे बियॉन्ड और ट्विन फ्लेम्स को लेके भी बात करने का मन था, ट्विन फ्लेम डायनामिक्स को लेके बेसिकली, बट अभी क्या करूँ, वाइंड अप कर लूँ या आप लोग, यू गाइज सजेस्ट मी, शुड आई टॉक ऑन एनीथिंग ऑफ ट्विन फ्लेम डायनामिक्स और आई जस्ट वाइंड इट अप? बताओ जो लोग सुन रहे हैं। अरे भाई बोलो भी, मैं भी कुछ करूं यार, कुछ नहीं बोल रहा कोई। इवन ये जो मास्टर क्लास है ना फाइनेंशियल अबंडेंस का, इसमें भी जो है ना, मैंने जब से अनाउंस किया लोगों ने बोला कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, पर मुझे वो जेन्युइन फीलिंग कहीं से भी आया नहीं कि लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। तो इस मॉड्यूल पे भी मैं अभी तक काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को जो है ना शेयर करना चाहता था, फाइनेंशियल अबंडेंस का मास्टर क्लास रोल आउट करके, ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई। जब तक एक बैच फॉर्म होगा ना, लोग थोड़ा जेन्युइनली बोलेंगे कि नहीं सर, और मुझे फील होना चाहिए कि आप जेन्युइनली बोलो, टाइम पास के लिए, दिल रखने के लिए नहीं, नहीं सर गाड़ी आगे बढ़ाओ, हम पीछे खड़े हैं। और जिस दिन मैं बैच के लिए बोलूँगा सर टाइम नहीं है, सर पैसा नहीं है, सर ये नहीं है वो नहीं है, पचासों आपका मजबूरी सामने आ जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। झेलते रहो आप अपना लाइफ में, फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलने का आदत हो गया है, झेलते रहो, क्यों चाहिए अबंडेंस, है ना? क्यों करना वो सब चीज़ें, करते रहो। क्योंकि ये सब चीज़ों को मैं एटलीस्ट आप लोगों के लिए नहीं सही तो खुद के लिए भी जॉट डाउन करना चाहिए था। जब से मैंने बोला, इतना सारा चीज़ मैंने खुद से भी नोटिस किया, एंड बहुत सारा चीज़ माइंड में आ रहा है कि एंटायर, जैसे शिव साधना का ही मैंने बोला ना कि बहुत सालों से करते करते ड्रॉप बाय ड्रॉप हर साल जो है ना इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना? देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑन डेली रूटीन बेसिस टू सो मेनी थिंग्स, अगर उनको आप अगर सही तरीके से करते हो ना, तो जाके आपका फाइनेंशियल अबंडेंस के ट्रैक में आप आके बैठते हो। उसके बाद आपका लाइफ, आपका लक, आपका फेट, आपका किस्मत डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आपको कितना अबंडेंस का, कितना पीक तक आप जा सकते हो। पर ये ट्रैक में ज़रूर डाल देगा आपको मेरा फाइनेंशियल अबंडेंस का मास्टर क्लास, ठीक है? वो फिर उसके बाद बाकी आपका किस्मत आपको कितना दूर तक ले जाता है, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। पर उसमें भी जब तक जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक जो दिखाने बोलने का कोई मतलब नहीं, राइट? एक ही जन ने बोला ट्विन फ्लेम पे बोलने के लिए, और किसी ने बोला भी नहीं, ठीक है? तो एक जन के लिए मैं ऑनलाइन आ जाऊं क्या फिर से? अरे बोलो भाई जल्दी। There is a very unique thing that I have noticed in this twin flame, you know, journey. Very unique. I suppose it will be the first time किसी ने YouTube पे ये बात बोला होगा, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना, और मैं ट्विन फ्लेम वीडियो सुनना भी बंद कर चुका हूँ लॉन्ग बैक, ठीक है ना? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ मैंने नोटिस किया इस जर्नी में, या मेरे सामने डाउनलोड हुआ, जो भी हो, ठीक है? चलो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, थोड़ी देर ब्रेक लेके मैं दोबारा जो है ना ऑनलाइन आ जाता हूँ। अगर मुझे उस टाइम ऑडियंस दिखा तो मैं जो है ना आप लोगों को वो ट्विन फ्लेम का जो डायनामिक्स है मैंने देखा है वो उसके मैं बात करता हूँ। पर उसमें थोड़ा सा क्या है ना कि मेरे को थोड़ा ऑडियंस भी चाहिए होगा, क्योंकि उसमें मुझे आप लोगों का भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना है, आप लोगों से भी कुछ चीज़ें पूछना है। टाइपिंग में लिख दो या लाइव ज्वाइन करके जैसे आप बता सकते हो, बताओ कि आपने भी वो चीज़ें नोटिस किया है या नहीं लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ मैंने पकड़ा है, ठीक है ना? तो चलो अभी थोड़ा सा जो है ना इसको सेटल डाउन करते हैं ये सेशन को, एंड थोड़ी देर बाद में ट्विन फ्लेम वाला उस टॉपिक पे, उस डायनामिक्स के ऊपर बात करता हूँ। जो भी लोग ट्विन फ्लेम डायनामिक्स के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, एंथुजियास्ट हैं, वही लोग ज्वाइन करें, है ना? क्योंकि वही लोग का काम भी है,
ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज, ठीक है ना, जो मैं चीज़ बताऊंगा आज, राइट। चलो सी यू गाइज फॉर द ट्विन फ्लेम डिस्कशन। अगेन आई टेक अ ब्रेक शॉर्ट वाइल, आप लोग भी ब्रेक ले लो थोड़ा अगर कॉन्टिन्यूसली कोई सुन रहे हो तो, ठीक है। चलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।